ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। किसान बैठे होंगे, बहुत सारे किसान बैठे होंगे। भाई साहब, ये कंडे तार लगा रखी है खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, इतनी बड़ी बड़ी तारें कील लगा रखे हैं। किसान कहीं दिल्ली ना चले जाएं। भाई दिल्ली नहीं जाएंगे और क्या मैं लाहौर भेजूं उनको? कहां भेजूं मैं उनको? भाई दिल्ली से सरकार चलती है तो दिल्ली जाएंगे वो, तो दिल्ली उनके साथ बैठ के बात करो ना। इससे पहले भी हरियाणा के बॉर्डर पर रोका 1 साल के लिए, 726 किसान शहीद हो गए। कोई इनको फिक्र नहीं है। रोको रोको, बस आने मत दो इनको, आने मत दो। कमाल है यार। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤਹੇਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੀਤਹੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤਹੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 10 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਤਹੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ है। एक नया नारा इस सरकार का, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे लगता है कि वो नारा भी 2 का विकास बाकी सबका सत्यानाश इस बजट में सारा कुछ दर्शाया जा रहा है। सभापति जी, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो स्वाभाविक है सारे लोग अपना देख रहे थे और पूरे देश का भी देख रहे थे कि क्या बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है। और जब बीजेपी की सुई 230 और 40 के बीच अटकी हुई थी तो हम सोच रहे थे कि 5-10 और कम हो जाएं और कम हो जाएं, लेकिन अब मैं कहता हूं भगवान का शुक्र है कि आपकी 240 आ गई। अगर 5-10 और कम हो जाती, पता नहीं बाबूजी नायडू जी के साथ कोई और बाबूजी आ जाते और इस वजह से और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मनरेगा का और किसानों का बजट और कम हो जाता। मैं समझता हूं कि पिछले 77 वर्ष से इतना मजबूरी बस बजट किसी सरकार ने नहीं पेश किया होगा जितना इस बार एनडीए सरकार ने बजट पेश किया है। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ NSA ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ NSA ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ NSA ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ NSA ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਗੋ ਨਗਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ
ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ, ਵਰਕਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। सर, मैं तो मांग करूंगी कि इस बजट का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये देश का बजट नहीं, ये सरकार बचाओ बजट है। जो देश का बजट होता तो फिर देश में 28 राज्य हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, सब मिला के तो ये तो 37 के करीब हो। लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों का नाम था और सबसे उसमें ज़्यादा बजट तो वो 2 राज्यों को मिला जिसकी लाठी के, जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चल रही है। तो ये देश का बजट नहीं सर, ये सरकार बचाओ बजट था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बजट में नेचुरल कैलेमिटीज़ और धर्म के नाम पे भी पक्षपात किया गया है। ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी बात कि आपने धार्मिक स्थानों को, बोध गया को, राजगीर को, जहाँ जहाँ आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस श्री दरबार साहब पे, अमृतसर साहब पे रोज़ 2 लाख लोग नतमस्तक होते हैं, उनको मुफ्त खाना मिलता है, सबसे बड़ा दुनिया भर, देश भर के लोग वहाँ पे जाते हैं और जहाँ पे सारा दिन सरबत के भले की अरदास होती है, उसका तो आपने नाम तक नहीं लिया। और फिर मैं नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करूँ तो फ्लड रिलीफ आपने राज्यों को दिया, बहुत अच्छी बात। जैसे मेरे सहयोगी ने मेरे से पहले बोला कि ये जो पानी आता है हिमाचल को आपने दिया पैकेज, तो हिमाचल का पानी पंजाब में आके पंजाब को जब डुबो देता है और तबाही मचाता है तो पंजाब को आप क्यों भूल जाते हैं? जब पानी डैम में भर जाता है तो आप डैम खोल देते हैं और हमारा पंजाब डुबा देते हैं। जब घग्गर रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है तो चुप इतने 7 के राज्यों को बचाने के लिए बंद तोड़ देते हैं और हमारे गाँव को डुबा देते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो उनको आपने दिया पैकेज, में उसका आपको आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है? क्या पंजाब के जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को मैटर नहीं करता? और हैरानी की बात सर, जब बाढ़ आती है तो पंजाब सफ़र करे, जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर कांग्रेस हो, आम आदमी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होकर षड्यंत्र खेले कि एसवाईएल की नहर बनाइए ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य को जाइए। तो जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं, जब पानी उनमें ज़्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं। और सर, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, तकरीबन 70 साल पहले इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रिपेरियन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया और कहते थे 1 साल में उस पानी का कॉस्ट क्या होगा आपको डिसाइड करके मिले। 70 साल से आज तक डिसीजन नहीं हुए। तो जो पानी हमारा दूसरे राज्य को रिपेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है, या उसको बंद किया जाए या हमें उसका पैसा दिया जाए, ये मैं आपसे आज मांग करती हूँ। सर, दूसरा मैं ये भी आपसे मांग करती हूँ कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो कह रहा है कि पंजाब के सारे ब्लॉक्स क्रिटिकल हो गए हैं, हमारे ट्यूब में, हमारे वेल्स में पानी नीचे जा रहा है। आज की रिपोर्ट तो ये भी है कि टॉक्सिसिटी इतनी हाई है कि पीने लायक नहीं है। तो ये सर, हम लोग को तो मदद करनी चाहिए और इस पूरे बजट में मदद की बात दूर, हमारा नाम तक नहीं लिख गया। हमें डिमांड करती हूँ कि पंजाब को भी दिया जाए। दूसरी सर, मैं किसानों पे आना चाहती हूँ। 4 पिलर बोले थे, युवा, महिला, गरीब, किसान। किसानों को तो मैं बोलना नहीं चाहती, जो कितने किसान खुदकुशी कर चुके हैं, शहीद हो गए हैं, आज तक धरने में बैठे हुए हैं। लेकिन जो ये किसान हकी सरकार होती जो कहती थी 2022 तक हम किसान की आय दुगनी कर देंगे,
तो मुझे इतना ही समझा दें कि 2022-23 में तो एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.7 थी, तो फिर पिछले साल 1.4 क्यों रहेगी जिनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी है। हकीकत यह है कि किसानों के ये दुश्मन हैं, किसानों के हिमैती नहीं हैं। आज हर एक तरह से महंगाई की मार देखिए। आज जो 8 साल पहले 40 किलो का बीज का एक बैग होता था, वो 800 से 1200 होता था, 2000 हो गया। डीएपी 3 गुना बढ़ गई कीमत, पोटैश 900 से 1700, जो लेबर का कॉस्ट होता था वो भी 3 गुना हो गया, जो हार्वेस्टिंग के लिए होता था वो भी 3 गुना हो गया, जो मशीनरी की रेंटल होती थी, डीजल आपने 47 से 90 कर दिया, तो वो आप सोच ले कहां तक। सो जहां किसान को रिलीफ देनी थी, उसमें रिलीफ क्या दी? मनरेगा में जीरो इंक्रीज। लोग सोचते थे आप बढ़ाएंगे, अमाउंट बढ़ाएंगे, दिन बढ़ाएंगे, जीरो। क्रॉप इंश्योरेंस क्रीप को -2.6% उसके अमाउंट में कटौती करी। यूरिया सब्सिडी में -7.4 की कटौती, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में -25% कटौती। गरीब कल्याण योजना का बजट 3.3% घटा दिया। किसान सम्मान निधि का 10% घटा दिया। 18 से 22 तक जितने फार्मर्स कवर अंडर पीए फसल बीमा योजना या सबका 8-9% उनका कट गया। और पंजाब की जब मैं बात करूं तो पंजाब की बेनिफिशरी जो पीएम किसान निधि में थे और आवास योजना 2018 से घटते ही जा रहे हैं सर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो किसान देश का पेट भरता है, किसान सबसे ज्यादा जो योगदान पाता है, ये 80 करोड़ लोगों को जिनको आप फ्री राशन देते हैं, उस किसान के साथ आप दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं? मैं अपील करती हूँ सरकार को कि जो एमएसपी लीगल गारंटी स्वामीनाथन कमीशन की रेकमेंड C2+50% उसको लागू करें। मैं ये भी बेनती करती हूँ, सजेशन सब 2-4 सजेशन देती हूँ कि जब तक आप नहीं करते कम से कम भावांतर स्कीम लाइए जिसकी एमएसपी पे नहीं बिक रही हो, मिडल जो बीच का रह जाता है वो दे। एक फार्मर फ्रेंडली क्रॉप इंश्योरेंस कोई स्कीम आप लेके आए जिससे किसानों का फायदा हो, इंश्योरेंस कंपनी का नहीं। और जो किसान के जो इम्प्लीमेंट्स हैं इन पे आप जीएसटी को खत्म करिए ताकि किसानों का कुछ फायदा हो, उनकी फल सब्जियां बचे, जिससे किसान की महंगाई, मानसून आ रहा है, टमाटर के रेट कहां चले जाएंगे। जी आप इम्प्लीमेंट्स में जीरो करें तो बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। सर आखिर में पंजाब की इंडस्ट्री 7 की स्टेटों को टैक्स इंसेंटिव्स देके तबाह कर दिया, हमारी इंडस्ट्री भाग गई है। मैं सिर्फ इतनी बेनती करती हूँ कि FN साहब लुधियाने गए थे, वो मंत्री बनी बैठे हैं अब वहाँ पे, लुधियाने गए थे जहाँ पे उन्होंने MSME इंडस्ट्री को बोला था कि जो अमेंडमेंट 43B जिसमें मैंडेट किया जाता है कि 44 डेज में आप पेमेंट करिए, नहीं तो आपके जो टैक्स इंसेंटिव फॉरफिट हो जाते हैं, वो इस बजट में उन्होंने नहीं किया। वो बहुत देख रही थी कि इंडस्ट्री करे। सर 2 मिनट, जो हमारी साइकिल इंडस्ट्री है, जो हमारी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, मैं आपको बेनती करती हूँ उनको इंसेंटिव। इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ 2019 से हमारा वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, बहुत नुकसान हुआ है। ये बॉर्डर खोला जाए और हमारे राज्य को कोई टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाए, साइकिल इंडस्ट्री को, स्पोर्ट इंडस्ट्री को बॉर्डर खोल के, ताकि हमारे इधर का व्यापार बढ़े और नौकरियां भी बढ़े। आखिर में सर मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगी, ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में पंजाब के खजाने को लूट के तबाह कर दिया है। हमारा यहाँ पे इतना ज़्यादा करोड़ 3.4 लाख करोड़ का कर्जा एक छोटे से राज्य पे चढ़ गया। GSDP रेशो 49% हो गया है। तो सर आप इनको सजा देने के लिए आप RDF रोक देते हैं, हेल्थ मिशन का रोक देते हैं, पर पंजाब के लोगों का क्या कसूर है? मैं आपको बेनती करती हूँ, जो हमारा पैसा है वो पैसा आप दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो देश में उसका दुगना है, ड्रग अब्यूज से हमारा राज्य जूझ रहा है। और पंजाब में औरतों का तो ये हाल है कि कुपोषण वो भी बढ़ गया है, अनीमा भी बढ़ गया है। और आंगनवाड़ी के जो राशन मिलता है गरीब बच्चियों के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स और बच्चों के लिए, वो इनकी सरकार ने, आम आदमी की जो सरकार वहां पे है, वो वेरका मिल्कफेड प्राइवेट आधारों से लेके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देके सब स्टैंडर्ड चीजें लोगों को देके करोड़ों का घपला हो रहा है। तो सर पैसे ना रोकिए, इनको पिनलाइज करिए ताकि लोगों को उतना हक मिले। और सर आखिर में मैं यही कहूंगी कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन 32% SC पॉपुलेशन पंजाब में है सर। सबसे बड़ा ग्रैनरी को योगदान पंजाब देता है। फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बड़ा योगदान हमने दिया। इस राज्य के मांगों को पूरी करके हमारे किसानों को हमारे चंडीगढ़ की राजधानी हमें दीजिए, हमारा पानी दूसरे राज्यों को जा रहा है उसको रोक के उसकी रॉयल्टी हमें दीजिए, नहीं तो वो सारे फैसले रिवोक करके हमारा पानी पंजाब पे रखिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया।